फलं बारहमास फलं मास फलं कबीर ऐसा बारहमास फलं बारहमास फलं कबीर ऐसा कबीर ऐसा मास फलं बारहमास फलं शीतल छाया गहर फल शीतल छाया गहर फल पंखी खेल करंग पंखी खेल करंग बारहमास फलं कबीर ऐसा बारहमास फलं बारहमास फलं शीतल छाया गहर फल शीतल छाया गहर फल शीतल छाया गहर फल शीतल छाया शीतल छाया गहर फल शीतल छाया गहर फल पंखी खेल करंग पंखी खेल करंग बारहमास फलं बारहमास 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 फलं कबीर ऐसा बीज बोए बारहमास फलं
इस मन को बसंत की लगे न सो, इस मन को बसंत की लगे न सो। इस मन को बसंत की लगे न सो, इस मन को बसंत की मन जलिया दूजे जोए, ये मन जलिया दूजे जोए, इस मन को दिन बसंत जो हर गुण गाए, दिन बसंत जो हर गुण गाए,
मन जलिया दूजे दोए ये मन जलिया दूजे दोए इस मन को मन छूटा गुर लिया छड़ाए मन छूटा गुर लिया छड़ाए नानक माया मोह शब्द जलाए नानक माया मोह शब्द जलाए मन जले ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1176 1176 ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 229 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫੁਲੰਤ, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਿਸ ਨੇਚਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਸੰਤ ਝੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ। ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਚਰ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ। ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਗੋਡ, ਖੁਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਮਨਸ, ਸਾਰੇ ਜਮ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਫਲॉज, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। बार मौली धरती मौलिया आकाश, भारती मान लिया भी मौली धरती मौलिया आकाश है, पर अंदर किवें मौलिया जाए? जे अंदर नहीं मौलिया गया तो फर्ज करो आज मेरी 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 साल उम्र हो गई है, मैं तो हर साल देखता भी बाहर बसंत चढ़ती है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਛਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਝੜ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਬਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਸੰਤ ਖਿੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜਾਹਟ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੀ ਬਸੰਤ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੌਲਿਆ नहीं किता। हर का नाम त्यायक है, हो हरिया पाई बसंत की वार, करम लिखन ते पाई है ये रुत सुआई। हुण की कहते वण त्रिण त्रिपावन मोलिया लत्थी सब छाई। वण त्रिण एक बारला है, एक मेरा भी है, मेरे अंदर भी वण है। इस शरीर नूं बण वण जंगल कहते हैं, शहर कहते हैं, गाँव कहते हैं। बाबा अपना बसोए गाँव, यदी गल चल रही है, बारले गाँव की नहीं गल चल रही। इनू शहर कहते ने। जे इत्थे गम है, दुख है, इत्थे सोहना शहर बसाना है, उन्होंने कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाओ, अंदर बसाना है। जहाँ गम ना हो वो शहर बसाना है। अंदर शहर बसाना है। जे अंदर शहर वसाना है तो अंदर शहर वसान वास्ते पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए करना पेगा। केड़े पंच वसाने ने, केड़े पंच इत्थों हटाने ने, ये सारा सोचना पेगा। और ज्यों ज्यों तेरी बसंत खिड़ती जाएगी, नवे पेड़ पौधे पत्ते लगणगे तो ये उत्ते पंखी आके बैठणगे। पंखी की है? चंगे चंगे ख्याल। जिस खूह उत्ते कोई इस्त्री पानी नहीं भरन जाती, वो खूह बेकार हो जाता। लोग उस खूह तो जाना डरते ने। कोई भी किसी की धी भैन अचानक किसी को कहा जाए ना उस खूह ते पानी भरन जाओ, कहती उत्थे तो कोई आता ही नहीं। वो सिंपली कहती माँ जी, दादी जी, मेरी सस जी, उस खूह ते तो कोई भी भैन, कोई भी इस्त्री पानी भरन आती नहीं। उन्होंने कहते ने काली कोयल तू कितबुन काली शब्द विधण खूही, वो खूही जिथे कोई पानी भरन ही नहीं आता। इंज मेरे मन की खूही जिथे चंगे ख्याल दी मत वाला कोई पानी भरन आंदा ही नहीं। विधण खूही मुंद केली, ना को साथी ना को बेली। Then the loneliness starts, then the boredom starts। मनुख अपने आप को कल्ला समझता है, हेल्पलेस समझता है, डरपोक हो जाता है। इंज
मेरा जिहड़ा मन दा पेड़ है सुक्का होया है। विदड़ खूही च खूह ते पानी भरन कोई नहीं सी आंदी, इंज मेरे मन रूपी पेड़ उत्ते कोई भी पंछी आके चहचहांदे नहीं हन। बिल्कुल जिस तरह काल पै जाता है ना, और काल पै जाए तो तुसी देखोगे पशु भी पंछी भी सारे मर जाते हैं। चारों पासे बड़ा अजीब जिहा माहौल हो जाता है। मेरा मन भी सुक्का पेड़ है। मेरे मन नूं कहंदे ने काहे रे मन चितवै उद्यम जा आहार हरजियो भरिया, सैल पत्थर में जंत पाए ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। अगे की कहंदे ने गुरप्रसाद परम पद पाया। हुण की करनगे अगे, सूके काष्ट हरिया। मेरा सुक्का पेड़ है ना, सुक्की लकड़ वांगू इनू हरिया कर देंदे हन सच दी संगत दे नाल। हरे हो जाण नूं परम पद कहंदे ने, हरे हो जाण नूं तुरिया अवस्था कहंदे ने, हरे हो जाण नूं निर्वाण पद कहंदे ने, हरे हो जाण नूं चौथा पद कहंदे ने। नॉट बिग डील, ये सिर्फ लफज ने, असीं ना लफ्ज़ां 'च नहीं गवाचना। जे तू हरिया भरिया हो गया मीनस तू खिड़िया होएगा, तेरिया भावां कुटियां नहीं होणगियां, तैनूं किसी नूं भी देख के क्रोध नहीं चढ़ेगा। तुसी देखो कदी भी पेड़ दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांत, यह दरवेशी है, दर दा वेस है। रब जी दे दर दे अंदर एंट्री लैण दा ना यह पहरन है, रोब ऑफ ऑनर है, चोला है। ये पाओ ना तब कैसे वाला पाओ, जिस तरह पेड़ रुख होंदे ने। रुख की करते ने, रुख खड़ा है, ये उत्ते भावें कोयल आके बहती है, रुख रिफ्यूज नहीं करता। कौए आके कां कां करते ने बैठ के, मना नहीं करता, आके विठ भी कर जाते ने, पत्ते भी चुंझ मार के फल भी खा जाते ने, मना नहीं करता। पर जे कां आके बोलन, उल्लू आके बैठ जान, पेड़ किसी नूं मना नहीं करता। ये जात सीख लेना, तेरे मन हिरदे वेड़े विच कोई भी आवे तेनू देख के मत्था ना कुट्टे। आज मेरी ननाण क्यों आ गई, आज पति कहता मेरा साला क्यों आ गया घर, तेनू अपने पेड़, तेरा पेड़ सुक्का है। यू हैव टू रियलाइज whether your sala is good or bad, whether your nanan is good or bad, whether your sas is right or wrong, whether your nu the mother is right or wrong, तेरा पेड़ जो सुक्का है ना, कोई पंछी इत्थे बैठण नूं आ जाए तेनू परवाह नहीं है, सुक्का पेड़ है। हरिया पाई दी गल है, खिड़िया खिड़ गए ना। नानक भगता सदा विकास, इसी को निर्वाण पद बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। निर्वाण पद पता नहीं क्या हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, मनुष्य एक टांग पे खड़ा हो जाता है, कोई करामात करने लगता है, ऐसी नहीं कोई गल। सिंपली हरा हो गया, मन तन हरिया होया। इस करके असीं अपने प्रोग्राम का लोगो भी इंज ही बनाया है, सूखे हरे की एक खिनमाए। दो पत्ते बने हुए तुसीं देखोगे टीवी ते साडे जी चैनल प्रोग्राम ते, हरे हो जाते हैं सुके पत्ते भी, सूखे हरे की एक खिनमाए, एकदम हरे हो जाते हैं। कदों जदों सतगुर दी मत नूं लिया, उन्होंने कहते ने ए मन मौलिया सतगुर संग, सतगुर दा संग करो हरे हो जाते। हाँ पर साध संगत जी, बाहरों मैं 12 महीने दियां संगरांदा मनाइयां, मैं पुराने दा पुराना रहा, मैं बसंत पंचमी मनाई, मैं पुराने दा पुराना रहा, मेरी पतझड़ ही कदे नहीं खत्म हुई, मेरा फॉल सीजन ही कदे नहीं मुक्का। मैनू बाहरलियां करामातां किसी वालों कीतियां जान ते बड़ियां चंगियां लगदियां, पर सब तो वड्डी करामात है अपने मन नू हरिया भरिया कर लेना। एक करामात नहीं है कि असीं एक बीज बोंदे पेड़ बन जाता है। एक करामात नहीं है कि पता नहीं किस तरह उन्होंने हरा रंग हो जाता है, घाह का भी, पत्तियां का भी, फल भी लग जाते हैं, फुल भी लग जाते हैं, इन्ना वड्डा तना लग जाता है, इन्हें हज़ारां साल खड़ा रहिंदा वो। ये करामात नहीं है।
अस्सी ते करामात समझदे फलाने ने स्वर्ग में से पता नहीं कौन से पारजात पेड़ में से पता नहीं कौन सी करामात से क्या क्या प्राप्त कर लिया। अपने हथे पारजात रुख लगाना सीखना, अपने अंदर स्वर्ग बना ना। पर तू ते अपनी इच्छा करदा है फलाना मर जाए, फलाना टै पवे, फलाने ना, क्योंकि तेरा कंपैरिजन है, तेरा कंपटीशन है। यू आर नॉट रियली वेल विशर। तू सिर्फ गुरुद्वारे आके कहंदा है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, पर तू मंगदा है बारों बारों, मनदा नहीं कि सरबत दा भला हो ही जावे। इस करके तू बारली बसंत पंचमी, बारले स्प्रिंग्स नूं मना के बस वेला हो जाता है। साध संगत जी, ये कोई फैशन है? जिमें फैशन विच स्प्रिंग का सीजन चला जाता है कि तू अपने मन की सोचनी के ढंग च तू फैशन बनाया होया है। बसंत पंचमी मना लो ये 2-3 महीने, फिर छुट्टी, फिर सूके रवो, फिर ठूठ बने रवो। सुके ठूठ होंदे ना जो जेड़ी वेलां लगदियां ना, वेलां ते जदों कुछ भी ना लगे उन्हां दियां जड़ां इंज निकल आंदियां ना, वो जड़ां उत्ते पैर रखो ना, वो कंडियां तो भी ज़्यादा जबरदस्त चुभदियां ने, उत्थे पैदल टुर नहीं सकदे। उन्हों असी 12 माह के शब्द पढ़िया सी, कुके काह के फुल्ले, वो इस तरह ठूठ बन के रहिंदे ने, वो तो टुरना भी औखा हो जाता है। तू 12 महीने फिर इंज बनिया रहिंदा है। कबीर साहब कहते ऐसी बसंत सोच जिहड़ी 12 महीने होंदी है। इस करके सानू अज दा पहला श्लोक पढ़ना पिया। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत। किसान भी हैरान रह जाता कबीर साहब ने किहड़ी खेती पढ़ ली, पता नहीं किहड़ी यूनिवर्सिटी कबीर साहब पढ़ के आए एग्रीकल्चर दी। कबीर साहब नामदेव जी महाराष्ट्र दे ने, नामदेव जी ਇਹ ਸਾਰੇ पता नहीं ਕਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी तो पढ़े ने। इंसानों नूं अंदर दी खेड सिखाते हैं, इंसानों नूं बाहरला रब लभण की बजाय अंदर दा रब लभना सिखाते हैं, अंदर दी सृष्टि सिखाते हैं। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। किस ढंग नाल पढ़ाते हैं, कमाल ही है। इन्हां दी इस कमाल नूं देख के गुरु नानक पातशाह इन्हां दी बाणी लैके आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब विच इकत्तर करते हैं, तो सानू प्राप्त होती है। हुण कबीर साहब कहते हैं कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत। मैनू तो एक आदत पई हुई है कि मैं बसंत पंचमी मना के बाकी 12 महीने तक कुछ नहीं करता ना। और जिस दिन बसंत पंचमी मनाई सी मैं उस दिन भी केड़ा खिड़ गया सी। मैनू तो जे धार्मिक स्थान पर भी जाना है तो मैं देखता नीली पगड़ी वाले मेरे ने, चिट्टी वाले काली वाले उन्होंने ने, लाल वाले उन्होंने, हिंदू उन्होंने ने, मुसलमान उन्होंने ने। मैंने तो उत्थे जाके भी बसंत चढ़ती वैसे है कोई नहीं है। मेरी मौली धरती मौले आकाश अंदरों नहीं होया हुंदा। मैं उत्थे जाके भी भाई साहब जी, सेवादार जी, ग्रंथी जी, इन्हां सारियां दे नाल इंज बोलदा जिस तरह मैं इत्थे दा चौधरी हाँ और इत्थों दे नौकर हन। साध संगत जी, ये नौकर नहीं हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉइज। इफ वी कंसीडर डॉट जितना भी के एम्प्लॉइज ने तो असी भुलेखा खा गए हैं। उसका नुकसान यह होया कि वी आर टुडे वी आर नॉट प्रॉपरली गाइडिड बाय देयर नॉलेज। सानू उन्होंने मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। पर बसंत असी चढ़ाई नहीं, अंदर बारली मनाण आ गए असी। कबीर साहब कहते पे ने 12 महीने का कोई बीज बो जिहदी फसल 12 महीने रवे। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत। ਉਹਦਾ फायदा क्या होगा? शीतल छाया, यू विल बी ठंडा। तेनू शीतलता मिलेगी जिस जैसे बाहर के पेड़ से छाया मिलती है, ऐसे तेरा तन मन ठंडा हो जाएगा। पर तू सतगुरु नूं कदे आवाज मारी भी है, पुछया भी है सतगुरु नूं? नहीं। तू सतगुरु नूं सुनिया ही नहीं, कदे पढ़िया ही नहीं, बोलिया ही नहीं। सतगुरु नूं ते कदी तू एक्सपैक्ट किया ही नहीं है। वट फॉर यू कम हीयर, मेरे बच्चे की नौकरी लवा दो, मेरी प्रमोशन करा दो, मैनू बोनस लै दो, साडा मकान बनना लै दो, साडे बच्चे का बाहर का वीज़ा करा दो, साडी धी का रिश्ता करा दो, या मैनू कार लै दो। तेरा यह सारा कुछ लोगों नूं वेख के कंपैरिजन तू इत्थे कुछ मंगण आंदा है।
हर कोई मजहब वाला कह रहा था हमारे यहां पर मांगने से मिली है। साध संगत जी ये ना आज हुने ना मैं प्लेन विच बैठ के ये पॉइंट्स मनु इस तरह एनालिसिस सुझिया, मैं प्लेन विच ही पेपर मांग लिया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। मां किसी का पुत्र देख के कंपैरिजन कर दिया मेरा पुत्र नहीं है। इस थॉट प्रोसेस ने की किया, ਇਹਦੇ मन अंदर ते बसंत चढ़न ही नहीं दी, क्योंकि साडा आज का टॉपिक है इस मन को बसंत की लगे ना सोए। ये मन जलिया दूजे दोए, ये दूसरों को देखकर जेलिसी में जलता है। मां पुत्र की पढ़ाई दूजिया के पुत्रों नाल कंपेयर कर दी है, पुत्र ही नहीं बच्चों के भी दूजिया के नाल कंपेयर कर दी है। जदों मां कहती है मेरा पुत्र ये नलायक है, ये पढ़ता नहीं, ये देखो जी हर वेले टीवी देखता है, हर वेले फोन ते लगा रहिंदा है, दोस्तों नाल फिरदा रहिंदा है, सारिਆਂ ਦੇ सामने पहला अपने पुत्र की पत लांदी है और फिर दूजिਆਂ के पुत्रों नाल कंपेयर करती है। उन्होंने 99% आते हैं, ये नलायक के 80% आए। साध संगत मैनूं याद है साडे वेले 33% आ जाते, शुक्र होंदा सी पास हो गया। हुण मां नूं ये रोना है क्योंकि जिस किट्टी पार्टी ते मैं जाना है ये मन जलिया दूजे दोए, उत्थे मैं अपने कंपैरिजन विच कुछ दुश्मन बनाए हुए ने जिन्होंने मैं बहुत मिठी जी सत श्री अकाल बुलानी हाँ, बड़े सत्कार नाल। जे वो आण ना तो मेरी लिपस्टिक और कपड़े कोई नहीं देखेगा, पर उन्होंने बुलानी हाँ अंदरों सोचदी है तुहाडे तो मैं घट नहीं हाँ, पर जिस पासों घट हाँ उस पासों तो मैं सड़दी हाँ। बच्चे की पढ़ाई, ओदी परसेंटेज, ओदी नौकरी, ओदा सब कुछ देख के अपने पुत्र नूं जलील कर दी है। ये मैं जलिया सड़दा है, बाहर बसंत मनाउंदा है, बाहर संग्रांदा मनाउंदा है। पिता पुत्र नूं होरनां नाल कंपेयर करदा, होर सारे कमा के लिआंदे ने, ये देखो जी उक्का ही ज्ञानी बन गया, ये देखो जी उक्का ही पाठ करन लग पिया, ये देखो जी सच्ची मुच्ची दा शरीफ हो गया है। छोटा जी मिसाल याद करना चाहता वा, एक कंट्री विच एक भैन का मैनू फोन आया, जी तुसी भुपिंदर सिंह जी हो? मैं क्या हाँ। तुसी इत्थे खंडे बाटे की पौल छका रहे हो? मैं क्या हाँ जी। गुरुद्वारे वाले अरेंज करने, साडी ते सिर्फ सेवा लगी है कि तुसी 5 प्यारिਆਂ विच सेवा निभाना। कहंदी अच्छा उहदे विच कड़ा पाना पैंदा, मैनू मिल जाएगा? मैं क्या हाँ। किरपान पैंदी है, मिल जाएगी? मैं क्या हाँ। 5 ककार मिल जाएंगे उत्थे? मैं क्या हाँ। केस से तुसी आप रखे ही हुए ने? कहंदे हाँ। क्या अच्छा भैन जी तुसी मैनू पुछना की चाहते हो? कहती मैं और पुछना चाहती हाँ उठना सवेरे किन्ने बजे है, किहड़ियां बाणियां कितनियां पढ़नियां? तो मैं ये उन्होंने सांझ की कि 4 बजर कुरैता भी ने वो भी नहीं करीदा, जिहड़ा खंडे की पौल छक ले वो जात पात छोड़ दिंदा है, जिहड़ा खंडे की पौल छक लवे वो दाज नहीं लैंदा, जिहड़ा खंडे की पौल छक लवे किसी ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, हर किसी को एक पिता एक के बारक समझदा है, यूनीवर्सल ब्रदरहुड समझदा है। जो मैं इस तरह उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की आइडियोलॉजी के नाल जोड़न लगा ना कि खंडे की पौल छकण वाले दे किहड़ियां क्वालिटीज़ प्रिंसीपल्स ते वो फर्म होंदा जांदा है। कहंदे मैं छकना सी ताकि शहर की मैं लिस्ट ही आ जावां, हुण इन्ना भी ग्रेट थोड़ा ना बन जाना है लिस्ट ही आउण वास्ते। एन जी पिता कह रहा मेरा पुत्र शरीफ तो होवे ताकि मेरे चरणों च आके अपने नोट रखता रहे, लेकिन इन्ना भी तो ना शरीफ हो जाए कि शामी शराब ही ना पिया करे। लै फिर ब्याह तो कुछ भी नहीं करेगा, लोकी की कहणगे। मेरे पुत्र को यह नहीं पता कि जी असी ये ब्याह ते कुड़ी वालियां कुछ भी पावांगे, अल्टीमेटली उन्हें घर ही तो आ जाना वापस। जे असी दिखावांगे कि असी 20-50 लाख की रिंग पाई है तो अल्टीमेटली तो साढ़े घर ही आ जाएगी। ले तो उका ही शरीफ हो गया तो दाज नहीं लैंदा, ये तो पार्टी ही नहीं करता। साध संगत जी पिता भी इस तरह कंपेयर करता है, पति पत्नी भी एक दूजे के नाल ना अभिमान करते हैं कि तू तुहाडा फेम क्यों है। अभिमान मूवी बनी हुई इसी वास्ते से कि तैनू ज्यादा क्यों लोग जानते हैं। जेड़ा पति चंगे नेक काम करता है, पत्नी कहती है तुम तो अपनी वाहवा के लिए करने जाते हो, हमें तो वहां कोई जानता ही नहीं है, सब तुम्हें पूछते रहते हैं और तुम घर का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं करते। जेड़ी पत्नी सीधे पासे पै जाती है, वो पति ने हंकार सारे तो तैनू ही पूछते हैं।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ टीचर भी कंपेयर करता है, ये बच्चा नालायक है और ये बच्चा सियाना है। सियाने वाले तुम आगे आ जाओ, नंबर भी अच्छे आते हैं, ये देखा कितना पढ़ता है, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते, बैक बेंच पे बैठ जाओ, ये बिल्कुल नालायक है, क्लास में मत आना, 3 दिन मत आना। उन्होंने कंपेयर कर दी है, जबकि टीचर इज नॉट पेंट फॉर दिस कंपैरिजन। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗਨ ਨਾ सोए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल, बाकी सब मेरे कंपैरिजन में कुछ नहीं है। साध संगत जी, एक कंपैरिजन अल्टीमेटली धर्म की दुनिया में पहुंच जाता है। साड़ी सोने की पालकी है, उन्हां दी नहीं है। साडा गुरुद्वारा धार्मिक स्थान इन्ना वड्डा है, उन्हां दा छोटा है। धर्म वाले दूजे धर्म वाले नाल कंपेयर करते हैं कि उनके धर्म पे इतने सारे लोग हैं, हमारे कम है। क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है। क्वांटिटी तो पैसे वाले को भी बड़ी होती है, लेकिन जीवन क्वालिटी वाला है कि नहीं, गल तो ये चल रही है। धर्म की दुनिया में होरना दे धर्मां दे नाल गिणती उन्हां दे स्थान संगमरमर दे के किदे इन्हां दी गिणती चलती है। फिर इस कंपैरिजन विच उन्हां दे सोने, उन्हां दे चेले कितने ने, उन्हां दे पैरोकार कितने ने, तीर्थ किसके कितने हैं और उस तीर्थ पे कितने लोग आते हैं और वहाँ पर चढ़ावा कितना चढ़ता है। अज सारा शब्द ना सानू ये समझा रहा है। ना जिहड़ी ईर्खा तेरी शुरू होती है ना, जैलसी शुरू होती है ना, यह कंपैरिजन करके होती है। कंपैरिजन की बीमारी तो छुट जा, कंपीटीशन की रैट रेस की बीमारी तो छुट जा। इफ यू आर इन रैट रेस, even if you win the rat race, you will be still rat। रैट तो तू शेर नहीं बन जाएगा जीत भी गया। Why then you are in rat race? सानू समझ ही नहीं आती। जो इंसान रैट रेस में जीत जाता है वो सोने की रोटी को चक नहीं मार सकता। चाहे वो रैट रेस में जितना मर्जी अमीर हो जाता है, उसकी रोटी उसी को खानी पड़ती है। उसका नौकर खा जाए तो वो नौकर को बोलता है हम कब खाएंगे, हमारे लिए भी बना के लाओ ना। उधर नहीं मानता कि नौकर कर लवे। बाकी धार्मिक दुनिया में कहता है कोई भी पाठ कर लवे, कोई भी कीर्तन कर लवे, कोई भी पाठ कर जाए ओदा महात्म मैनू मिल जाएगा। कोई संत जी, कोई बाबा जी विआह ना कराण, ओदा महात्म मैनू मिल जाएगा। कितना भुलेखा है ना। धार्मिक दुनिया विच कंपैरिजन, रैट रेस, कंपीटीशन। साध संगत जी, ये नंबर ऑफ पीपल दे नाल धर्म नहीं बचते ने। धर्म बारे तो गुरु पातशाह कहते ने धर्म दा सच दस सुनिया, गुर प्रसाद तो हमेशा है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ट्रुथ प्रिवेल्स, इट डज नॉट प्रिवेल सब्जेक्ट टू क्वांटिटी, इट डज नॉट प्रिवेल सब्जेक्ट टू कौन से धर्म के कितने लोग हैं। ट्रुथ प्रिवेल्स। ट्रुथ अंदर अपनी ताकत है, नंबर ऑफ पीपल तो नहीं है। नंबर ऑफ पीपल, मेजॉरिटी, वोट दी गेम, ये वो नहीं है। तेरे अंदर दी खेड है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरे बाहरले मौसम, बाहरली कायनात, ये सारा कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तेरा टब्बर भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस करके जो तू अंदर बसंत खिड़ानी है ना, अपने पति पत्नी वोटी बच्चियां इन्हां ते डिपेंड ना करया कर। इफ यू थिंक कि मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤਾਂ पॉसिबल नहीं है। सो बाहरला ते तैनू टब्बर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। अपना मन तन हरिया करना सीख लै ताकि तैनू बाहरों जीना आ जाए। जिसनू अंदरों जीना आंदा ना, ਉਹਦਾ मानो परलोक संवर गया है। जिसका परलोक संवर जाए तो उसका बाहरला ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ लोक सुखी हो जाता है। हुण असीं अपने शब्द ही चाहिए।
मनु अज के शब्द विच कहते हैं, इस मन को बसंत की लगे न सोए, जरा भी सो नहीं लगती, खुशबू नहीं लगती, मैसेज नहीं मिलता कि बसंत चढ़ गया। क्यों? ये मन जलिया दूजा दोए, द्वैत विच सड़दा है। इस शब्द का रहाओ है, डुअलिटी च रहिंदा है, तेर मेर करदा है, अमीरी गरीबी गोरा काला, ब्लड रिलेटिड और नॉट रिलेटिड दी गेम विच रहिंदा है, बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दूहू माए। कंपैरिजन करता है और कंपीटीशन दी ईरखा विच फसदा जांदा है। इनू अपने बारले रिश्ते भी निभाने नहीं आते, इनू जीना नहीं आता, क्योंकि इसकी अंदर दी सृष्टि दी कायनात खिड़ी नहीं, इनू अंदर दी धरती नू मोलना नहीं आया। कहते ने तीन बसंत जो हर गुण गाए। साध संगत जी, तुहानू एक पुस्तक बाहर मिलेगी जिहदे विच असीं गुरबाणी दे 100 अखाण, ईडियम्स इन गुरबाणी, असीं उन्हां दी ना पुस्तक सांझ कीती है भी ईडियम्स दा थीम गुरबाणी अंदर की है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ शब्द समझ आना शुरू हो जाता है। जिस तरह के काहे पू झगड़ा तो संग बाप, ਜਦੋਂ इसनू अंदर टुका के देखते हैं तो शब्द मेरे बारे चल रहा है। ਜਦੋਂ मैं कंटेंटेड नहीं होंदा, मैं अपने संतोख रूपी पिता दे नाल मेरा मन झगड़ा कर रहा है। काहे पू झगड़ा तो संग बाप, दिस इज ईडियम, मुहावरा है, अखाण है। इस तरह 100 अखाणा की पुस्तक मिलेगी। हुण मेरा ये वीर कहता है, वीर जी तुसी ना ऐसे लफ्जी गाउना की होता है, गाए गाउना होता है मन हर वेले जिस पासे लगा रहे, जिस पासे दी धुन छिड़ी रहे, धुन में ध्यान, हर वेले जिस पासे धुन लगी हुई है उसी धुनी विच रहना। जिस तरह कि मैं सिंपल एग्जाम्पल पेश करदा कि अमेरिका का बच्चा मोस्टली बेसबॉल की गल करता है, बास्केटबॉल की गल करता है, उसनों उसकी धुनी होती है। इस करके जो जो वड्डा होता है वह खेडदा है, क्योंकि उसकी धुन है, उन्होंने ही टीवी शो देखेगा, उहदा ही स्पोर्ट्स देखेगा, उहदे ही करैक्टर्स दे कार्ड्स खेडेगा, उन्हों की बनैना पाएगा, उन्हों का ही सारा फैशन करेगा। इंज देखते देखते उहदे अंदर यह शौक पैदा हो जाता, मैं भी इंज खेडा। बच्चा जदों उन्होंने गाउण लगता है ना, तो घर आके जिद करता है, मैनू बैट बॉल लै दिओ, फिर खेडदा है। जिस पासे मन की धुन होंदी है ना, उस पासे ही जदों लगा रहे, शरीर के अंग उस तरह ही काम करन लग पैंदे ने, इनू गाउणा कहंदे ने। जो शराब के गुण गांदा रहिंदा बचपन तो, वह वड्डा होकर शराब पींदा है। जिसनों बचपन तो ही गरीबी दे अंदर देख देख के लग्या कि मेरे को पैसे नहीं ने, पावर होनी चाहिए, वह ध्यान पैसा, स्टॉक मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले, रातों रात अमीर कैसे बन जाऊं, वह मन वो वाले गुण गाता रहता है। कहते ने जे तू रब्बी गुण गाए, रब्बी गुण गाना मीन्स भगवान जी आप बहुत अच्छे हो पर मैं अच्छा नहीं हाँ, मैं अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा बना दो, फिर तो रब्बी गुण गाण का फायदा है। पर आप अच्छे हो, ऊपर ही रहो, नीचे मत आ जाना, फिर रब्बी गुण नहीं गा रहा, फिर सिर्फ मक्खनबाजी कर रहा है। आप अच्छे हो, अच्छेपन में से कुछ मेरे को दे दो और अच्छे ऊपर ही रहो, मैंने अच्छा नहीं बनना, इनू रब्बी गुण गाना नहीं कहते ने। यू आर काइंड बट आई डोंट वांट टू बी काइंड। आप निर्वैर हो, मैं तो निर्वैर होना ही नहीं चाहता। तुसी निर्भौ, मैं तो फीयरलैस है ही नहीं हाँ। यही गल वापर रही है ना, निक्की निक्की गल ते असीं डर रहे हैं ना। जदों डरदे हाँ तां परांदियां बंदे हाँ कारां दे पिछे, जदों डरदे हाँ घर दे बाहर निंबू मरचा बंदे हाँ, जदों डरदे हाँ तो टच वुड करते हाँ, कोई भी गल करन वेले टच वुड करते ही हाँ ना। वुड जिवें साडी राखा करेगी, रक्षा करेगी, टच वुड। तुहाडे बेटे की सेहत किस तरह, टच वुड अजकल ठीक है, जिवें वुड नूं टच ना किया तो मतलब बीमार ही हो जाएगा, है ना। साध संगत जी ये गल्लां ना थोड़ियां कौड़ियां लगदियां, पर सच ते सांझ करना ही है ना, कि गिणतियां मिणतियां च रहीए। सो तुहाडे चों ना जदों गुरबाणी विचार शुरू होएगी ना, आपे पता लगेगा अकॉर्डिंग टू गुरबाणी असीं की ठीक करदे हां ते की गलत करदे हां।
ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਕੇ ਰਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਕੇ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇਗੀ, ਰਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਪਤੀ ਪਤੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਸਮ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੌਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਡੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਇਮੋਰਟਲ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ, हर दे गुण गाना भी जैसे रब जी ने तीन बसंत जो हर गुण गाए पूरे भाग हर भगत कराए। पूरे भाग का मतलब की है? मैनू लगता है कि भाग बनाने वाले पूर्वले कर्म का ना शब्द तुहाडे ते सांझ करना पएगा। असी बनाते हाँ, वी राइट अवर ओन डेस्टिनी। असी अपने मत्थे ते भाग आप लिखते हैं। ये मन तंदा बांधा कर्म कमाए। जो मेरा मन तंदा करता, मैंने इतने पाठ कर लिए, अब तुम मेरे को कुछ दो। नहीं, देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने 5 लाख इतने पाठ किए, 108 रखाए, इतनी बारी माला फेरी, इतने दिन नंगे पैर गया, हर साल तुम्हारे धार्मिक स्थान पर जाता हूं, ये चढ़ाता हूं। ये सारा तंदा करना है। ये मन तंदा बांधा कर्म कमाए माया मूठा। मन की बनाई हुई माया दा ठगाया रहता है, सदा बिल्ला है, दुखी रहता है, अपसैट रहता है। क्यों? इसमें बसंत की सोच लगी नहीं। ये मन छूटा है या सतगुरु पेटा है। देखो एकदम गुरु पातशाह ने होप नाल ही दे दी। देख, तेरा मन जलदा रहता है, सड़दा रहता है, तेनू ईर्खा है, हुण इस तो छूट सकता है। ये मन छूट है, पर सिर्फ घूम फिर के आ जाने से नहीं छूटता है। सिर्फ आके मथा टेक के यहां से बड़ी श्रद्धा से वैसे जाके फूल रख के और चले जाने से नहीं छूटता है। सिर्फ कुछ चढ़ा के चले जाने से नहीं छूटता है। साडा बच्चा मेरे समेत, तुहाडे समेत, किसी भी माता पिता का बच्चा स्कूल जाए, स्कूल दे सारे चारों पासों चक्कर कट के स्कूल दी क्लास अंदर जाके टीचर दे पिछों इंज घूम के सारिया किताबां नूं फुल हार चढ़ा के खुशबू चढ़ा के घूम के आ जाए। देखो बेटा कुछ पढ़ के भी आया कि नहीं? टीचर ने पूछोगे ना, इसको बिठा के पढ़ाया भी करो ना। कुछ दुनियावी पढ़ाई वास्ते तो असीं मनदे नहीं कि घूम फिर के आ जाओ। इंज आके घूम फिर के चले जाने नाल नहीं गल बनेगी। आ गए जी सदके, घूमे फिरे हो जी सदके, पर सतगुर की गल सुननी पेगी। जे साड़ा मुकाना है, जे इस नरक तो छुटना है, अंदर दी जलन तो जे छुटना है, अंदर जे शीतल होना है, तां सतगुरु नूं आवाज मारनी पेगी। आओ सजन तू मुख लग, आओ सजन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए, मेरा तन मन ठंडा होए। तू मुख लग, तू मुख लग, डिठी हाब टटोर, हिकस बाज न कोई। आओ सजन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए। तू मुख लग, आओ सजन तू मुख लग। सतगुर सज्जन नूं मुख लाना पेगा, मिलाप करना पेगा, उधर शेक हैंड करना पेगा, फेस टू फेस रूबरू होना पेगा, सच दे सामने अपने आप को खड़ा करना पेगा। सच शीशा होता है, मनु दिखाओ मैं कहाँ कहाँ से जल रहा हूँ, काइंडली शो मी, मेरी आग किथे किथे लगी हुई है, मेरा छाती शीतल मन तन सुखी कर दो ना। ये मन छूटे जा सतगुरु पेटा है। फिर ए विकार जम काल की, फिर आवे ना फेटा, फिर जम नहीं फटदा। मरण तो बाद वाले दिन मनु पता होंगे, जींदे जी जेडे जम पकड़ते ने ना, उस तो छुट जाते। हाँ, ये मन छूटा गुरलिया छुड़ाए, सतगुर छुड़ा लेंदा है। जिदा छुट गया सतगुर ने छुड़ाया। नानक माया मोह शब्द जलाए,
ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਤੇ ਬੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੀਤਲ ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ 24 ਆਵਰਸ 7 ਡੇਜ਼ 365 ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕਮਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਛਾਇਆ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ, ਫਿਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸੰਜੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਸਖਰੇਪਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਖੀ ਕੇਲ ਕਰੰਤ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਓ ਅਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਰੁੱਤ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਮਨ ਤਨ ਮੌਲਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਛਾਤੀ ਸ਼ੀਤਲ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।